آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ۔ آزاد جموں کشمیر کے ضلع باغ میں تمام پولنگ سٹیشنز میں ووٹنگ کا عمل جاری۔ عوام کی بڑی تعداد حق رائے دہی کے لیے پولنگ سٹیشنز پر موجود۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن کے 4 حلقوں میں پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ 4,60,000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ تیسرے مرحلے کے تحت پونچھ اور باغ میں پولنگ جاری ہے۔ وفاقی وزیر امین مقام اور مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ منتخب حکومت آزاد کشمیر کے معاملات کو جمہوری انداز میں چلائے گی۔ کشمیریوں کے مینڈیٹ سے منتخب حکومت قیام پذیر ہوگی۔ دھرنا دینے والے آزاد کشمیر انتخابات نہیں روک سکے۔ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والے عناصر کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت مظاہرین کے جائز مطالبات پر ضرور نظر ثانی کرے گی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کی پولنگ پر تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کی نیوز کانفرنس، کہا پولنگ سٹیشنز پر ایجنٹ کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن درست انداز میں نہیں ہوئے۔ جدوجہد کے ذریعے ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ ملک کے بڑے صوبے میں گورننس کی صورتحال خراب ہے۔ پنجاب میں سنگین نوعیت کے مقدمات کی شرح زیادہ ہے۔ میر رضا کیس میں اہم پیشرفت، سرائے کے مطابق گیسٹ ہاؤس میں کام کرنے والے 6 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کیس سے متعلق اب تک 21 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زیر حراست افراد میں میر رضا کے دوست اور بزنس پارٹنرز بھی شامل ہیں۔ بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ پولیس نے جائے وقوع کے قریب موجودہ گیسٹ ہاؤس پر تالے لگا دیے۔ میر رضا کے معدے سے تیزاب کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ میر رضا کے پھیپھڑے تیزاب کے باعث شدید متاثر ہوئے۔ میر رضا کی شرٹ پر تیزاب اور کسی اور کے پسینے کے نشان ملے ہیں۔ میر رضا کے ہاتھوں اور پیروں پر بھی تیزاب کی موجودگی کے اثرات پائے گئے۔ مقتول میر رضا کے والد میر حسین کا نئی تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد کے ساتھ، کہا وزیر داخلہ اور میئر کراچی کل آئے تھے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا۔ ہم نے کہا سوچ کر بتائیں گے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی اچھی شہرت کے افسر ہیں، تحقیقاتی کمیٹی سچ سامنے لائے گی۔ میرے بیٹے کا بزنس پارٹنر بھی غائب ہے۔ پولیس نے ایک بار تفتیش کی۔ گلستان جوہر میں قائم گیسٹ ہاؤس کے ملازمین میں کیا تحقیقات ہوئی ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ گیسٹ ہاؤس کی سی سی ٹی وی اب تک سامنے نہیں آئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس سست روی کا شکار، مقتول کی والدہ ٹرائل میں مبینہ تاخیر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کلہوڑو اور جسٹس عبدالرحمان پر مشتمل بینچ نے درخواست کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ سے مقدمہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ مقدمے کی سماعت و التوا سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ لاہور ٹاؤن شپ پولیس کی حراست میں 2 خواتین کی ہلاکت میں پولیس کی تفتیش میں پیش رفت۔ دونوں خواتین کی پولیس حراست میں جانے سے قبل کی ویڈیو کو انکوائری کا حصہ بنا لیا۔ دونوں خواتین ٹاؤن شپ بی بلاک میں علاقہ مکینوں سے تکرار کرتی رہیں۔ علاقہ مکین مبینہ طور پر واردات میں ہتھیائی گئی رقم کا مطالبہ کرتے رہے۔ خواتین نے پولیس کے پہنچنے سے قبل جائے وقوع سے نکلنے کی کوشش کی۔ موبائل ویڈیو معاملے کی انکوائری کا حصہ بنا دی گئی۔ پولیس کے مطابق خواتین کی ہلاکت کی انکوائری ضابطہ فوجداری کے تحت جاری۔ انکوائری مکمل ہونے پر تمام شواہد سامنے لائے جائیں گے۔ جولائی میں ترسیلات زر 13% بڑھ گئی، وزیراعظم کا اظہار اطمینان۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی 2026 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے مجموعی طور پر 3 ارب 63 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی ہیں۔ جون 2026 میں ترسیلات زر کا حجم 3 ارب 47 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ جولائی 2026 میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے سالانہ بنیادوں پر ترسیلات زر میں 13% اضافہ نہایت خوش آئند ہے۔ نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب سے رابطہ، دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر شیخ جرح جابر نے خطے کی صورتحال بشمول مقبوضہ مشرقی یروشلم پر تبادلہ خیال کیا۔ قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे में कलीदी किरदार पर असगरी क़यादत को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तारीखी मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाला मक्का बाहमी दिफाई मुआहदा एक अहम कदम है। पाकिस्तान हमेशा से तमाम इस्लामी ममालिक को एक मजबूत और मुत्तहिद ब्लॉक की शक्ल में देखने का ख्वाह रहा। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का ख्वाह है और हमेशा बेहतरी और इस्तेहकाम की सोच के साथ आगे बढ़ता है। मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे का मकसद मुस्लिम ममालिक के दरमियान भाईचारे, बाहमी ताउन और यकजहती को फरोग देना है। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वक्त ने मयार तालीम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात को सराहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वक्त ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वक्त की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लिए लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का विजन महफूज पंजाब, पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर जदीद तकाज़ों से हम आहंग। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का सिविल डिफेंस हेडक्वार्टर का दौरा। पंजाब सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस के जदीद आलात की नुमाइश का मुआयना किया। सेक्रेटरी दाखिला ने हेडक्वार्टर के तज़यीन और आराइश शुदा ब्लॉक का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर महफूज, बासलाहियत और जिम्मेदार पंजाब की जानिब एक अहम कदम है। अफगानिस्तान भारत मजमूम गठजोड़। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान को दी गई भारतीय नागज़ टेक्नोलॉजी भी नाकाम। शिकस्त खुर्दा भारत की अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती और पाकिस्तान में ड्रोन्स हमलों के अज़ाइम खाक में मिल गए। तहकीकाती रिपोर्ट ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तालिबान रजीम को दिए गए नाक़िस ड्रोन्स की कलाई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों का गठजोड़ बन चुका, जहाँ 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। दहशतगर्दों के लिए महफूज माहौल भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका फराहम कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पंजगोर के इलाके सरकेनी छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनुल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहानुम वासिल, 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। फिरोजाबाद पुलिस और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। नसीम अब्बास कत्ल केस हल, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 20 जुलाई को नसीम अब्बास को फायरिंग करके कत्ल किया था। मुल्जिम विसाल ने कत्ल को डकैती में मुज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाकर गिरफ्तार किया। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। फैसलाबाद में बीवी ने आशना के साथ मिलकर शोहर और 3 बेटियों को जहर दे दिया। आशना गिरफ्तार, शोहर जा बहक। तीनों बच्चियों को फौरी तिब्बी इमदाद के तहत बचा लिया गया। पुलिस मददगार 15 मलिर सिटी की कार्रवाई। मोबाइल फोन चोर गिरफ्तार। पुलिस को घर में झगड़े से मुतालिक इत्तला मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक मकान में 4 अफराद रिहाइश पसीर हैं। एक शख्स का मोबाइल फोन चोरी हुआ। पुलिस ने जाम तलाशी के दौरान मोबाइल फोन चोर को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से चोरी शुदा मोबाइल फोन और नकली पिस्तौल भी बरामद। शिकारपुर की तहसील खानपुर में मुबैना जहरीला खाना खाने से एक और बच्ची जहाँ बहक। हलाकतों की तादाद 4 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मनुशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF के क्रैकडाउन। लेडी स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद मालिक की मनुशियात बरामद।
पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की एक हफ्ते में 40 कामयाब कार्रवाइयां, 45 मुनशियात के स्मगलर्स गिरफ्तार, 51 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई। मुनशियात की मालियत का तखमीना 4.5 करोड़ रुपए लगाया गया है। असलहा और एक ड्रोन भी बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 152 पॉइंट्स की कमी, 1,81,270 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 267 कंपनीज के हिस्से में इजाफा, 212 कंपनी के हिस्से में कमी, 84 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बलूचिस्तान में ज़राई तरक्की और मकामी ज़मींदारों की खुशहाली की जानिब अहम पेशरफ। अहम मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल। फेज़ 1 के तहत दुक्की, किला सैफुल्ला और सिब्बी में 3,800 एकड़ ज़मीन काबिल काश्त बनाकर 144 शमसी ट्यूबवेल नस्ब किए गए। फेज़ 2 के तहत कोलू, बारखान, चमन, नौशकी, डेरा बुगटी, जोब, मस्तूम, कोयटा और किला सैफुल्ला में 8,481 एकड़ ज़मीन काबिल काश्त बना दी गई। बाजोड़ के इलाके खाकी में पाक फौज की जानिब से 6 देहात के मकामी अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। माहिर डॉक्टर्स की जानिब से जनरल मेडिसिन, सर्जरी, आँखों, अमराज नसूल, नफ्सिया और फिजियोथेरेपी की सहूलियात फराहम की गई हैं। मकामी अफराद की मुफ्त तिब्बी मुआयना, अद्वियात और सेहत से मुतालिक आगाही फराहम की गई। कैंप में 876 अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। मकामी मशरान और अवाम ने दौर इब्तदाई इलाके में मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान तक इल्हाक की तारीखी दास्तान एक ऐनी शाहिद की ज़बानी। क़याम पाकिस्तान की तारीख लाखों शहदा, मुहाजिरीन और बुजुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों से इबारत है। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी काचू मेहदी अली ने इस वक्त के हालात और अवामी जज्बात बयान करते हुए कहा कि तक़सीम हिंद के वक्त बरतानवी इक़्तिदार के खात्मे के बाद गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान का इंतखाब किया। वसाइल और हथियार न होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों ने बेमिसाल जुरात का मुजाहरा करते हुए आज़ादी की जद्दोजहद की। इस दौर में बेशतर लोग पढ़े लिखे न थे, मगर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जज्बा क़यादत से मुतासिर थे। क़ायद-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के क़याम पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खुशी का इज़हार किया और पाकिस्तान से अपनी वाबस्तगी मजबूत की। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। माह अगस्त के आगाज़ के साथ ही कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियां शुरू। खेलों के मैदान आबाद, सब्ज़लाली परचम तले बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया। खेलों और आज़ादी तक़रीबात पर भरपूर शिरकत का सिलसिला जारी। कोयटा में जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का इनेकाद, मर्द व ख़वातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। मौसमी स्टेडियम कोयटा में 7 अगस्त से जारी आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का फाइनल 9 अगस्त को खेला गया। कोयटा की आबदा बतूल ने खेलों के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़कर बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए मिसाल भी कायम कर दी। आबदा बतूल ने बॉक्सिंग में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए अपने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इस्लामाबाद में बच्चों की आज़ादी वॉक, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। बच्चों ने चेहरों पर सब्ज़ हिलाली परचम सजाए, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। हुकूमत सिंध ने यौम आज़ादी के मौके पर 14 अगस्त जुम्मे के रोज़ आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारे बंद रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया।